Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with the topic trigonometric functions of particular angles for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11. Now see, in this topic, we are studying trigonometric functions of angles in quadrant. जिसमें पिछले वीडियो में हमने trigonometric functions of angles in first quadrant देखे थे, जिसमें we have studied three specific angles. Okay, the trigonometric functions for three specific angles having measurement 30 degree, 60 degree and 45 degree. In today's video we will be studying the trigonometric functions of angles in second quadrant और उसमें भी हम तीन specific angles के measurement देखेंगे. Okay, we will study trigonometric functions for the angles having measurement 120 degree, 135 degree and 150 degree. Okay, so now continuing with the angle having measurement 120 degree or 2 pi by 3 radian. Now see, consider a standard unit circle. Consider a standard unit circle with center, origin having x coordinate 0, y coordinate 0. Now see here, major angle XOA, this one, major angle XOA is 120 degree or 2 pi by 3 radian. Okay, अब देखो जो भी एंगल्स हम देखेंगे दे आर स्टैंडर्ड एंगल, मतलब उनका इनिशियल आर्म कंपल्सरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा, फिर भले ही उनका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फिर पूरा 360 घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, जैसे 390 डिग्री का एंगल होगा सपोज, तो वो पूरा 360 घूम के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. ओके, या फिर वो एंगल हो सकता है 480 डिग्री का, तो 480 है तो वो पूरा घूमेगा एक बार 360 डिग्री, फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करेगा 90 डिग्री, 360 प्लस 90 इज 450 और फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और 30 डिग्री कवर करेगा, 480 होगा. लेकिन वो एंगल कितना भी बड़ा उसका मेजरमेंट हो, उस एंगल का इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही रहेगा और उस एंगल का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन ही रहेगा. ओके, सो नाउ सी हियर, मेजर एंगल XOA is 120 degree or 2 pi by 3 radian. Its terminal arm OA intersects the circle at point P having x coordinate x and y coordinate y. अब देखो, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जब भी एंगल्स इन क्वाड्रेंट हम कंसीडर करेंगे तो उसमें जो पॉइंट P है, ओके, ये पॉइंट P से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और मेक श्योर कि वो परपेंडिकुलर आप x एक्सिस पे ही ड्रॉ करो. y एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकते हो पर वन ट्रैक ही चलने दो, x एक्सिस पे ही ड्रॉ करो. ओके, नाउ सी द टर्मिनल आर्म OA intersects circle at point P having x coordinate x, y coordinate y. Draw PM perpendicular on x axis. Therefore, this OM is equal to x, PM is equal to y, या फिर length of PM, length of OM ऐसा लिख दो. Okay. Now see, OP is radius of unit circle. And therefore, length of OP is 1 unit. अब देखो यहां पर मेजर एंगल XOP प्लस मेजर एंगल POM 180 डिग्री होगा. मेजर एंगल XOP प्लस मेजर एंगल POM इज 180 डिग्री. रीजन रहेगा लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, और मेजर एंगल XOP नहीं, सॉरी XOA लेंगे हम. ओके, सो मेजर एंगल XOA 120 डिग्री है प्लस मेजर एंगल POM जो है आपका वो नहीं पता हमें, वो पता करना है. तो मेजर एंगल POM इज 180 डिग्री minus 120 degree.
So major angle POM is 60 degree. Okay. So now see, in triangle POM या PMO, angle PMO is 90 degree by construction. फिर angle POM is 60 degree. Reason is, इसे वन नाम दे दो भले कि भाई from वन. Therefore, the remaining angle OPM is 30 degree. Reason आएगा remaining angle of triangle. Therefore, triangle PMO is 30, 60, 90 triangle. Okay? Triangle PMO is 30, 60, 90 triangle, and therefore by 30, 60, 90 triangle theorem, अब देखो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, so ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री. Side opposite to 30 degree angle is half of hypotenuse, and hypotenuse here is OP. Reason is side opposite to 30 degree. And what is OM? It is x is equal to half into OP is 1. So x is half. Okay. Or PM is side opposite to 60 degree का angle, and side opposite to 60 degree का angle is √3/2 times the hypotenuse OP. Side opposite to 60 degree. Therefore, PM is y, it is √3/2 into 1. So y is √3/2. Okay, but this point P lies in second quadrant. Okay, this point P lies in second quadrant. Therefore, x जो रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, सो x इज माइनस हाफ. y पॉजिटिव होता है, y √3/2 ही रहेगा. ओके, सो नाउ सी x इज माइनस हाफ, y इज √3/2. और एक मिनट यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट. इसमें भी हम क्या लिख रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, और उसके भी हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स देख रहे हैं यहाँ पर. वो रहेंगे 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 150 डिग्री. ओके, यही स्पेसिफिक एंगल्स हमें देखने हैं. ओके, सो नाउ सी 120 डिग्री यानी 2π/3 रेडियन. इस मेजरमेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं. यहाँ पर हम x का वैल्यू माइनस हाफ और y का वैल्यू √3/2 फाइंड कर चुके हैं. अब नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कैसे लेना है. अब देखो, हम पिछले फ्रेम में देख चुके हैं कि x का वैल्यू माइनस हाफ आया और y का वैल्यू √3/2 आया. सो नाउ सी बाय डेफिनेशन cos theta is x upon r. Therefore cos here theta is 120 degree and x is minus half. R is 1 obviously because it is a unit circle. So cos 120 degree आएगा minus half. ओके, भले ही ट्राइंगल 30, 60, 90 का तैयार हुआ हो, लेकिन ये जो x और y के वैल्यूज हैं ये आप 120 डिग्री के एंगल के लिए ही लोगे. ओके, cos 120 डिग्री माइनस हाफ ही आता है. देन sin theta is y/r. So sin 120 degree is y is √3/2 and r is 1. So sin 120 degree is √3/2. Okay. Then tan theta is
sin theta upon cos theta. So so tan 120 degree is sin 120 degree upon cos 120 degree, यानी कि √3/2 अपॉन माइनस हाफ, ये 2 कैंसिल, माइनस साइन ऊपर जाएगा, सो tan 120 डिग्री इज -√3. Okay, then cot theta is 1 upon tan theta, so cot 120 degree is 1 upon tan 120 degree, and tan 120 degree is nothing but -√3. So cot 120 degree क्या होगा, it will be -1/√3. Okay, then sec theta is 1 upon cos theta, so sec 120 degree is cos 1 upon cos 120 degree, so it is 1 upon cos 120 is nothing but -half, और -half का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -2. so sec 120 degree is -2, and finally cosec 120 degree is 1 upon sin 120 degree. sin 120 डिग्री इज √3/2, और √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3. ओके, भले ही यहाँ पे ट्राइंगल 30, 60, 90 का तैयार हुआ हो, पर ये वैल्यूज 120 डिग्री के लिए है. ओके, अब देखो इसके बाद 120 डिग्री के बाद सपोज हम 150 डिग्री के एंगल की बात करेंगे. ओके, सो 150 डिग्री एंगल के लिए क्या होगा, यहां पर ये जो टर्मिनल आर्म है ये थोड़ा और आगे जाएगा, बराबर है, 150 डिग्री का एंगल आएगा. सो जो रिमेनिंग एंगल बच जाएगा, जैसे यहाँ पर 120 डिग्री के बाद ये रिमेनिंग एंगल 60 बचा था, वो बच जाएगा 30 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर एंगल 30 हो जाएगा 90, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60. सो अगेन इट वुड बी 30, 60, 90 ट्राइंगल. बस वहां पर जो x आएगा वो आएगा -√3/2 और y आएगा हाफ. ओके, सो इस तरीके से हम 150 डिग्री एंगल के लिए सॉल्व करेंगे. और यदि हम 135 डिग्री एंगल के लिए बात करते हैं तो ऑब्वियसली टर्मिनल आर्म और थोड़ा आगे जाएगा. 135 डिग्री एंगल कवर करने के बाद जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो 45 डिग्री होगा. सो वहां पर जो ट्राइंगल तैयार होगा वो 45, 45, 90 ट्राइंगल तैयार होगा. और जब भी 45, 45, 90 ट्राइंगल तैयार होगा और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल रहेगा, सो x रहेगा 1/√2 और y भी रहेगा 1/√2. पर यहाँ पे पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से x रहेगा -1/√2 और y रहेगा 1/√2. और इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल 135 डिग्री फाइंड कर सकते हो. ओके,